नंबर्स के पीछे सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं, कहानियां होती हैं, सपनों की, स्ट्रगल्स की और सक्सेस की। और फाइनेंस वो उन कहानियों का साइलेंट हीरो है। सपनों की उड़ान है आसान, अगर फाइनेंस की नॉलेज हो साथ। सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, उसे समझने की है बात। वेलकम टू पे चर्चा, अ प्लेस where we talk with innovators, leaders, and change makers from diverse fields. My name is Mantasha Qureshi, and I will be your host for today's episode. Well, today's class is really special. We have with us a CFA charter holder, entrepreneur, content creator, founder of Tradomate.one, a teacher, and our very own alumni, Mr. Ritvik Dashora Boss, whose vast expanse of technical experience, financial expertise, a teaching flair guarantees a fantastic lesson. Welcome to the episode, boss. We are so glad to have you here with us. It's Thank you so much for the introduction, and you don't need to call me boss. I'm not in the college anymore, so it's absolutely fine. You can just call me Ritik. And yeah, thanks for giving me this opportunity to be a part of your Pay Chalcha. इससे पहले मैंने mostly offline ही podcast किए, so we have a proper setup. We also have a podcast studio and a channel, but this is the first time that I'm doing it online. I'm very excited for it. I'll just quickly give my introduction as well. As you already mentioned, I was CFA charter holder, but before that, I am a mechanical engineer. I pursued it from an IIT Bhopal in 2011, 2015 batch. And At that time, while I was in third year, I got this thing here. I'm not the mechanical engineer guy. So I started looking for other streams. Finance was something that was very interesting at that time. And I started exploring different things. There's a certification called NCFM, NEC Certification in Financial Markets. वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. Prepared for CFA level 1, cleared CFA level 1 when I was in final year itself. Level 2 and level 3 later, got the CFA charter holder. Pursued my master's in advanced finance from IE Business School, Spain, major in fintech. Have been a trader myself for more than 10 years, both stock and options. I've worked with investment banking roles, financial modeling roles. And when I was in Spain doing my master's, I started my YouTube channel. I come from a teacher's family. All of my family members are teachers. Mummy, Papa, Dada, Dadi, sabhi log. So, hey, of course, there's something that I had in my DNA. So I started my YouTube channel on teaching financial programming um, to people like me, because I'm not a coder. मुझे बिल्कुल नहीं आती थी coding. I started learning coding while teaching the people to how to code in Python and PineScript. These are the two programming languages that I mostly covered. I got some good response on my YouTube channel. Have somewhere around 50 to 53,000 subscribers on my YouTube, around 2.5 million views. And then then I started generating interest in into the world of fintech. Yeah, let's plan something here. When I was doing YouTube, I was getting many projects from USA on making some algo trading strategies and building some trading bots for US based brokers. I did that. I registered my company in Canada. I did that business for some time, then moved to a startup called Deserve. I just wanted to learn how the Indian startup space work. Then after Deserve, I found my co-founders, started Tradomate.one, which is a trading ecosystem. We are building multiple types of tools at Tradomate, which helps traders in their trading journey, and eventually will become a stockbroker. So that's a brief background about myself and the journey that I've been into. If you have any questions, please feel free to ask. Exactly. That's such a valuable insight of yours. I think a lot of people listening will connect with that. So, boss, how does it feel reconnecting to Manet after so many years? So I have been in touch with some people from Manila, at least from my batch. I'm in touch with almost all of them. कुछ-कुछ मेरे इनफैक्ट आज की तारीख में भी जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा रूममेट था, जो मैनेट में थर्ड ईयर फाइनल ईयर में था. हिज नेम इज़ दिव्यांशु जैन, वर्किंग एज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियर, ब्रेकिंग सिस्टम इन एल्स्टॉम. सो स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड. एक्चुअली वी लिव वेरी नियर बाय, उसका घर थोड़ा दूर ही है यहाँ से. So, Manit has been a very important part of my life. I have always been in touch with all of the people.
जो आप लोग जो नए जूनियर्स जो आए हैं उनसे थोड़ा टच कम हुआ है. आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट विथ मैनेट विद द न्यू ब्लड अगेन. So it feels so exciting to come to complete the circle of life. दैट्स अमेजिंग। आपके लिए काफ़ी नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस होगा ये, एंड इट फील ग्रेट टू हियर दैट यू डिड नॉट फेयर एंड यू डिड नॉट लाइक आप भूले नहीं अपने कॉलेज को एंड स्पेन में पढ़ने के बाद भी। नहीं यार, I can never forget Manet, of course. All the chill. एब्सोल्युटली दैट्स यस दैट्स प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस हियर। I still remember hostel 1, then hostel uh, the second one was hostel 4, then hostel number 6 and 8. ये 4 hostels में मैं रहा हूँ. अभी I don't know उनके नंबर से आपको रीअरेंज हो गई तो I have no clue. But yeah, it was a great experience. यस बॉस। बॉस जैसे आपने मेंशन किया कॉलेज लाइफ में, तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट रहा है जो उस टाइम पे बहुत सीरियस लग रहा था कॉलेज टाइम में, लेकिन आज याद करके वो फनीएस्ट पार्ट रह गया हो एंड दोस्तों के साथ वो मेमोरीज? So सबसे पहली चीज़ तो एक कि यार मार्क्स सीरियस लगता था बहुत ज़्यादा कि यार खैर आई एम नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट. आई did not never scored 9 प्लस पॉइंटर. इवन 8 प्लस भी बहुत कम ही रहा है. तो मार्क्स में थोड़ा-सा रहता था क्या बिकॉज़ आई आई नेवर गॉट गुड मार्क्स. मैं खैर पढ़ता भी इतना अच्छे से नहीं था. तो वो लगता था कि यार ये शायद एक प्रॉब्लम रहेगा. मार्क्स आर गुड बट नॉट लाइक दीज़ आर नॉट द ओनली थिंग. दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग यू शुड बी फोकसिंग ऑन. वही एक लगा था. अगेन आई विल जस्ट रिकनेक्ट आई वुड से रिकलेक्ट द सेम मेमोरी जो मैंने मेरे दिव्यांशु के साथ है. तो दिव्यांशु वाज़ माय रूममेट. ही वाज़ अ ब्रिलियंट पर्सन. उसको ब्रेकिंग सिस्टम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत पैशन था, अभी भी है. तो हमको पढ़ाता था. हम तो यार बंक करते थे काफ़ी ज़्यादा क्लासेस बट इन द एंड पढ़ लेते थे प्रोफेसर से और कुछ-कुछ लोगों से इंक्लूडिंग दिव्यांशु. कैसे करके पास होते थे बट तो दैट वाज़ वन थिंग यार हम लोग थोड़ी सी मक्कारी कर रहे हैं ये इवेंचुअली दिक्कत ना कर जाए. ज़्यादा नहीं करना चाहिए मक्कारी बट थोड़ी बहुत कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी लर्न विद टाइम. एग्जैक्टली बॉस, इट रियली रेजोनेट्स द वे यू पुट इट, मेक इट इवन मोर रिलेटेबल। ऐसे मोमेंट सच में कॉलेज लाइफ को काफी मेमोरेबल बना देते हैं। एग्ज़ैक्टली. एंड द चाय पॉइंट चाय पॉइंट नहीं सॉरी क्या नाम था उसका? माता चाय माता मंदिर राइट? यस। हाँ, चाय एट माता मंदिर. यार नाइस. बस मैनेज से निकलने के बाद आपने अपनी हायर स्टडीज स्पेन में आईई बिजनेस स्कूल से परस्यू की। व्हाट मेन डिफरेंसेस हैव यू एक्सपीरियंस्ड इन द टू कंट्रीज? Hmm. So there were two reasons, actually three reasons why I wanted to do masters from uh, outside India. The first one was fees. I wanted to do higher studies. MBA in India is pretty expensive. और मुझे लग रहा था कि यार इतने ही अमाउंट में विद सम स्कॉलरशिप अगर कुछ मिलता है अच्छे कॉलेज में और ज़्यादा अच्छे रैंकिंग कॉलेज में शायद मैं हायर स्टडीज कर सकता हूँ. आई गॉट आई बिजनेस स्कूल मास्टर्स इन एडवांस फाइनेंस विच इज प्रीटी रिकग्नाइज्ड in the entire world at a very discounted cost. So that was something that's reason number one. Reason number two is मैंने जैसे बताया कि I'm not that good in studies, so it would be very I would say impossible only for me to crack CAT. तो मैं नहीं कर सकता था. मैंने एक बार कोशिश भी किया था. आई लिटरली डिड नॉट डू वेल. सो जीमैट वाज ईजियर फॉर मी. तो मैंने जीमैट दिया. आई स्कोर्ड 700 मार्क्स. 700 मार्क्स इन जीमैट एंड देन गॉट आई बिजनेस स्कूल. Point number 2. Point number 3 was I know a lot of people in India who have done studies from MBA colleges from prestigious universities like IIM Ahmedabad, IIM Bangalore. अभी भी हम काफ़ी लोग के टच में हैं. मेरे भैया खुद IIM लखनऊ से उन्होंने मार्केटिंग में MBA किया है. तो आई wanted to have a different style of learning than the Indian post ग्रेजुएशन वाला जो स्टाइल होता है. मतलब नथिंग बैड अबाउट इट बट मुझे मेरा थोड़ा सा मेरा डीएनए समथिंग डिफरेंट. इंडिया में जैसे मोस्टली थोड़ा कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा सिखाया जाता है यार हाउ टू गेट प्रमोशंस हाउ टू वर्क रियली हार्ड और स्मार्ट इन अ वे दैट आप वो जो कॉर्पोरेट लैडर क्विकली कर सको राइट. ये काफ़ी सिखाया जाता है विच इज़ ऑल्सो गुड. इंडियन स्पेस में विद लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द एंटायर मार्केट यू शुड लर्न दिस थिंग. बट मुझे इससे ज़्यादा थोड़ा कोलैबोरेटिव अप्रोच थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती थी. तो दैट रीज़न मैंने यूरोपियन कॉलेज पिक किया. स्पेन लिया जहाँ पर लोग कोलैबोरेटिव ज़्यादा होते हैं. एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पर हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए थे कोलैबोरेटिव होके
उसमें कुछ मार्क्स होते नहीं थे, सिर्फ हम एक दूसरे से बात करते थे, हम एक दूसरे से कोलैबोरेट करते थे, डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से काम होता है एंड सो ऑन. So I learned a lot of things in a way, how to collaborate, how to do something for someone without any motive. जैसे यार अभी हम लोग ये कर रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी. कोई और पॉडकास्ट का बोलता था, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी. देयर इज अ म्यूचुअल कनेक्शन हियर, देयर इज अ बार्टर ट्रांजैक्शन हियर. मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, एंड फॉर दिस रीजन आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल एज वेल विदाउट एनी मोटिव. इवेंचुअली भगवान ने एक्चुअली इसका एक मॉनेटरी बेनिफिट बना दिया, बट व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड नो नथिंग इन माय माइंड. मुझे था कि यार आई जस्ट वांट टू share my knowledge, what I'm learning myself. I just wanted to record myself and then put it on YouTube. People were learning with me, तो I was very happy. Eventually हो गया, वो अलग बात है. So for this reason, क्योंकि मेरा थोड़ा thought process different, I wanted to do this master's. So ये एक मुझे difference लगता है इंडियन करिकुलम में और यूरोपियन करिकुलम में. That's truly inspiring, boss. And it sounds like काफी eye-opening experience रहा होगा ये. And that's a unique way to look at it. I hadn't thought of like that. Perfect. But again, nothing bad about इंडियन एजुकेशन सिस्टम. बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रांग है. Absolutely. एनालिटिकल स्किल्स जो दिखाई जाती है वो यहाँ वहाँ पर नहीं होती. अगर आप ऑन द अदर हैंड आप अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे क्या चीज़ आपको खराब लगी, तो मेरे पास उसकी भी लिस्ट है. वहाँ पर लोगों का एनालिटिकल स्किल्स मुझे अच्छा नहीं मिला. वहाँ पर अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट को डीप रिसर्च करना है ना, तो हम लोग ये जितने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना, वही लोग साथ में बैठ के करते थे, क्योंकि हमारी एजुकेशन इस तरह से रही है. तो हेड्स ऑफ टू द एजुकेशन सिस्टम वी हैव इन इंडिया. Yes, तो yes, के प्रोज एंड कॉन्स. I picked the European education system for masters. yes, boss. So, boss, what role do you think junior senior interaction played in college life? Looking back now, क्या आपको उससे कुछ advantage मिला? जब हमने इंजीनियरिंग किया था, जब रैगिंग बहुत होती थी. आई डोंट नो आपको होती है कि नहीं होती, आई होप ना होती हो. बट एटलीस्ट फॉर मी, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, एटलीस्ट फॉर मी इट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग इन माय पर्सनैलिटी. मेरी बहुत रैगिंग हुई थी बाय द वे. सो जब मैं एक्चुअली आई वाज द लीड सिंगर ऑफ मैनेज बैंड एट दैट टाइम. मतलब उसका नाम था राग करके. देयर वर टू बैंड्स, एक राग था और एक आई थिंक हेवॉक स्पार्क था. तो जन्मजय जे बॉस हमारे सीनियर, वो एक दूसरे बैंड के थे और हम लोग इसके थे. तो क्योंकि हम लोग काफ़ी म्यूजिक एक्टिविटीज़ में और काफ़ी कॉन्सर्ट्स वगैरह सब में इन्वॉल्व होते थे, तो हमारी रैगिंग भी ज़्यादा होती थी. फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ वी वर इन्वॉल्वड इन दीस थिंग्स, बिकॉज़ ऑफ व्हिच कॉन्फिडेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ. सो ये जूनियर सीनियर इंटरेक्शन जो है ना, हमने फर्स्ट ईयर का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखा. आई डिड नेवर डिड रैगिंग, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं सकती थी. बट मैंने देखा है लोगों को रैगिंग देते हुए, रैगिंग करते हुए. मैंने खुद ने दी है. विथ टाइम आई स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगा था, बट विथ टाइम दैट एक्चुअली इम्प्रूव्ड द रिलेशंस विथ द सीनियर्स. और जिन-जिन लोगों ने एक्चुअली जितना सताया, वो लोग बाद में उतना ज़्यादा काम है. इनफैक्ट कुछ-कुछ लोग को मैं आज भी जानता हूँ. तो और वो हमारी कहीं एक बार बात निकली थी, एक बार आई वोंट नेम दैट पर्सन, बट हम लोग मिले थे एक बार यहीं बैंगलोर में. उन्होंने बताया था कि सेकंड ईयर, जब मैं सेकंड ईयर में था, तब उन्होंने रैगिंग ली थी बिकॉज़ ही वाज़ इन फाइनल ईयर. सो अगेन ये सारी चीज़ें होती थी. जूनियर सीनियर इंटरैक्शन वाज़ वेरी हेल्दी एट दैट टाइम. some some sort of toxicity as well because of these things, but eventually जो इसकी एंडिंग होती थी वो काफी हेल्दी होती थी. आज भी सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड. दैट्स माय पर्सपेक्टिव. Absolutely, boss. Seniors are always there to help us out in some or the other way. And I can actually relate to that, whatever you have said. And then spring an important part of a college journey. 100%. Yes, boss. So, boss, coming back to the trading and investing part, boss, as now people are getting more aware about trading and investing. So, अगर किसी को investing start करना हो with a very little amount, what would be the smartest way to begin with? सो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना हो, व्हाट इज द मेन मोटिव फॉर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग? इज इट जस्ट लर्निंग और इज इट वेल्थ क्रिएशन? व्हाट डू यू थिंक? Sir, if someone is interested in the in that field and want to explore, first of all, लर्निंग, राइट. yeah, अभी तो हम लोग वेल्थ क्रिएशन की बात कर नहीं रहे, इवेंचुअली शायद होगा. सो लर्निंग में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों एक्सप्लोर करें. मेरे कुछ-कुछ क्लासेस भी हुई थी, तो मैंने यही बताया था कि जस्ट टेक सम अमाउंट ऑफ मनी, से 500 और 2000 रुपीस, और उसको मान के चलो कि वो मेरा ट्यूशन फी है, वो ज़ीरो हो जाएगा. उससे कोई उम्मीद नहीं रखना, बट ट्राई टू इम्प्लीमेंट और एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट.
अब इन्वेस्टिंग में अगर करना है तो इन्वेस्टिंग में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स फॉर एग्जांपल, राइट? वी कैन स्टार्ट विद दैट। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स थोड़े सेफ हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा सेफ है, राइट? आई डोंट थिंक आप लोग डेट में एक्सपीरियंस करना चाहोगे, इवेंचुअली वो भी हो जाएगा। बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड हुआ या फिर थोड़ा रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप, मिड कैप, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लर्न करना है, 3-4 म्यूचुअल फंड्स लेकर जस्ट ट्राई टू प्ले विद इट। ट्रेडिंग करना है तो देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। इंट्राडे होता है, स्विंग ट्रेडिंग है, पीपल डू एफ-एन-ओ ट्रेडिंग एज़ वेल, पोजिशनल ट्रेडिंग एटसेट्रा कैश मार्केट में। अब ट्रेडिंग में भी अगर आपको करना है, एफ-एन-ओ इज़ प्रीटी लाइक वेरी वेरी आई वुड से हाई रिस्क ट्रेडिंग एक्टिविटी। इन दैट केस ये मान के चलो कि ज़ीरो सम गेम है, हो सकता है ज़ीरो हो जाएगा। और मान लो ₹500 आपने लिए, जस्ट मान के चलो कि ज़ीरो होने वाले हैं और ट्रेड करो और लर्न करो कि क्या किया है। आई ऑलवेज़ रिकमेंड पीपल टू मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। यार आपने क्या ट्रेड लिया है, इसका रीज़न क्या है? हो सकता है गलत हो रीज़न। आपका उस माइंडसेट क्या है? आर यू नर्वस राइट नाउ? आर यू एक्साइटेड? आर यू वेरी हैप्पी? या फिर कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो जस्ट राइट इट डाउन, इट्स फॉर योरसेल्फ ओनली। मैं किसी को दिखाना नहीं। एंड जब हमने उसको स्क्वायर ऑफ किया है, तब फिर से देखो सिचुएशन क्या है, क्या मैंने लॉस बनाया है आज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, सो ऑन। एंड दैट्स हाउ वी लर्न, बिकॉज दिस इज a game of experience. People teach trading. People do a lot of paper trading as well. कुछ कुछ लोग अपने बुक्स पे या कॉपी पेन पे ही करते रहते हैं, कभी लर्न नहीं कर सकते इसमें। If someone wants to learn trading slash investing, you should start with real money. Don't put a lot of money. Consider that amount of money to be zero after some time. अगर वो नहीं होता है zero, then उसको just make sure that ये zero हो जाएगा eventually. Just do those crazy experiments कि वो ज़ीरो हो जाएगा, and whenever it is ज़ीरो, just list down all the things which you have learned in this journey. ये 10 चीज़ें मैंने सीखी है, now I'll make sure कि फ्यूचर में ये ज़ीरो कभी ना हो, and then you start doing trading actually in the real market. That's the advice that I give to everyone. That's really inspiring, boss. And that actually align into what many aspiring young entrepreneurs can learn from. So, boss, Are you also interested in trading or investing? yes, boss, like little bit. That's why somewhat in finance related. So I joined INSEAD also to get the exposure and to explore first the things. परफेक्ट। तो आप पहले थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करना, जैसे बीएसई, एनएसई क्या Yes, boss. कौन-से स्टॉक्स हैं, क्या-क्या करते हैं लोग, थोड़ा-सा अगर यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। Then just consider ₹500 start with it. And like as per your appetite, 500, 100, 1000, whatever you think is good. Absolutely, boss. That makes perfect sense. हाँ जी। So, boss, after completing your master's, you pursued CFA, which is one of the toughest course in the field of finance, but you never stopped learning. So, if you were given a choice to start over, would your path have been the same or any different? So one correction, I did CFA before I pursued masters. I got the CFA charter in 2018 itself. I started doing masters from 2019. तो हाँ, जर्नी की अगर आप बात करें तो यार द जर्नी थोड़ा-सा चेंज करना चाहूँगा यार मैं। सो व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज, आई थिंक मतलब मैं मैनेट की बात कर रहा हूँ। बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा। आई थिंक ओनली माय क्लोज़ फ्रेंड्स एंड आवर इन्वेस्टर्स वुड नो दिस स्टोरी। I had a business in Manit as well. It was an online food delivery business. उस समय ज़ोमैटो, स्विगी कुछ था नहीं। उस समय सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट 2012, 2013, इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन था नहीं उसका। उस समय सिर्फ डोमिनोज़ था। और रैगिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम थी उसके कारण डोमिनोज़ की जो बाइक्स है उनको भी आने में डर लगता था। वो ये हमने देखा था। बाहर गेट पे ही वो रख देते थे एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से लेकर गेट तक आना पड़ता था, कलेक्ट करने के लिए। आई होप अभी तो सब ईज़िली एंटर होते होंगे। और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बाहर जाते थे खाने के लिए क्योंकि खाना खराब था मेस में, तो ये प्रॉब्लम थी। सो आई थॉट ऑफ दिस थिंग कि यार लेट्स डू सम ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस। हम लोग उसको बोलते थे फूड एट एफबी, क्योंकि कोडर नहीं थे तो हमने फेसबुक पे ही मतलब ये सर्विस शुरू कर दी थी। सिंपल एक गूगल फॉर्म्स पे ही हमने कुछ कुछ काम किया था, बट द मेन फोकस यहाँ पे ये था कि यार लोगों के पास में आके खाना मिलेगा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स। तो वी कोलैबोरेटेड विद 5 रेस्टोरेंट्स। एक तो माता मंदिर में ही था, एक आई थिंक व्हाट वाज़ नेहरू नगर, यस नेहरू नगर में एक था। देन वन वाज़ बेक एंड शेक,
इन एमपी नगर, वन वाज करीम रेस्टोरेंट इन एमपी नगर, और एक मैं भूल रहा हूँ। ऐसे 5 रेस्टोरेंट्स थे। हमने हमने सारा एक सेक्शन रखा था चाइनीज़ का, नॉर्मल नॉर्थ इंडियन फूड का, साउथ इंडियन फूड का, नॉन-वेज का, और केक्स एंड ऑल, बेकरी का। हमको लगा था कि इट इज़ जस्ट एन एक्सपेरिमेंट है। अब ये सेम का जो ब्रेक था उसमें हमने जस्ट शुरू कर दिया, लेट्स लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। और हम सीनियर थे, 3rd ईयर में थे, तो हमको लगा था अब तो हमको कोई रोक नहीं सकता। और क्योंकि इतनी रैगिंग दी थी, इतना सब कुछ था, तो कनेक्शंस भी बन गए थे, तो अब हमको रोकने वाला कोई था नहीं। वी गॉट दिस अप्रूवल लेटर फ्रॉम द डीन, एंड जो अपने मिस्टर अप्पुकुट्टन केके वाज़ द मेन हेड ऑफ एमएनआईटी एट दैट टाइम। तो हमने उनसे अप्रूवल लेटर लिया, वी स्टार्टेड दिस थिंग, जहाँ पे डिलीवरी बॉय जो होगा वो उनका ही होगा रेस्टोरेंट से। तो स्टार्ट हमने किया, थोड़ा स्लो पिक हुआ, पर इवेंचुअली बहुत अच्छा पिक हुआ। एनआरआई हॉस्टल में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था, लड़कियों की तरफ से बहुत अच्छे, बहुत सारे ऑर्डर्स आए। आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, मेड सम गुड अमाउंट ऑफ मनी एज़ वेल डूइंग दिस थिंग। मेरा प्लान था एक्चुअली इसको एक्सपैंड करने का दूसरे कॉलेजेस में, और एक खुद की एक कैंटीन लगा देने का, सच दैट क्योंकि हम लोग तो मार्जिन लेते थे उसपे, जो मेन्यू जो प्राइस होता था उसमें मार्जिन होता था। नॉन-वेज में मार्जिन ज़्यादा मिलता था, अराउंड 20-25% तक का मार्जिन मिलता था। जंक फूड पे भी मार्जिन अच्छा मिलता था, नॉर्थ इंडियन फूड पे मार्जिन कम मिलता था। तो हमको लगता था कि यार एक ऐसा स्टॉल लगा दें, जहाँ पर एटलीस्ट भले ही कोल्ड कॉफ़ी वगैरह का, जहाँ पे 100% मार्जिन हमारा, हम खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। पूरा प्लान था, बट फिर इसमें कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स दिखी कि यार इतना आसान नहीं है सब करने का। वी नीड टू हैव अ टीम, उस समय बच्चे भी थे। बट हाँ, दैट वाज़ वन थिंग। तो आपका जो क्वेश्चन है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि कुछ चेंज करना चाहोगे अपनी जर्नी को। सो इसके बाद मैंने सीएफए किया, एंड देन सीएफए, फिर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रूल्स और ये सब किया, देन आई डिड मास्टर्स एंड ऑल। मैं सिर्फ एक चेंज करना चाहूँगा कि यार मैं शायद थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करना चाहता फूड एडेप्टी को। शायद मैं उस समय ही वो बिज़नेस कर लेता जो मैं आज कर रहा हूँ। हो सकता है डिफरेंट इंडस्ट्री हो। आज मैं फाइनेंस में कर रहा हूँ, उस समय शायद मैं फूड एंड बेवरेजेज़ में कुछ करता। वो एक चीज़ है, जो कि मुझे लगता है कि यार मुझे थोड़ा जल्दी, इतनी जल्दी बंद नहीं करना चाहिए था। इतनी जल्दी वो नहीं, रोकना नहीं चाहिए था। कुछ और एक्सप्लोर किया जा सकता था। बहुत छोटे थे उस समय हम लोग। क्या होता, फेल होते तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। सो दैट्स वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू चेंज। बाकी तो सब ठीक ही। बाकी फेलियर मिला, बट वो लर्निंग था। That's very inspiring, boss. Like you have said that you pursued financial from the very start. That's so impressive. एग्ज़ैक्टली। तो दैट्स हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन बिज़नेस, बाय द वे। ये एक और चीज़ है। Well, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। माय फैमिली कम्स फ्रॉम द सर्विस क्लास, दिस थिंग, कि यार सारे टीचर्स हैं, सारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मुझे कभी बिज़नेस का एक्सपीरियंस रहा नहीं। ऐसे मैं गुजराती मारवाड़ी फैमिली से आता नहीं हूँ, तो मुझे बचपन से कुछ पता नहीं था, कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। व्हेन आई डिड इट माय सेल्फ, तब मुझे समझ में आया कि यार ये कैश फ्लो जब होता है, तो कितना मज़ा आता है। तो वो एडिक्शन एक जो होता है ना, एक वो लगने लगा कि यार दैट्स दैट्स अमेजिंग। अगर हमने वो क्रैक कर लिया, तो ये एडिक्शन बड़ा खतरनाक एडिक्शन है। इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप वी कॉल इट समथिंग कॉल्ड पीएमएफ, प्रोडक्ट मार्केट फिट। अभी हम लोग जैसे जो ट्रेडोमेट में भी जो कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अचीव दैट। यार वो जैसे ही वो हिट होता है, इट्स बेसिकली अ पोजीशन वेयर customers are happy what we are offering, they are ready to buy it as well, we know where these customers are exactly, और we know the method of scaling up as well, कि मुझे पता है कि एग्जैक्टली कौन कौन से चैनल्स पे हिट करना है और स्केल अप करना है। ये अगर सब कुछ पता है, दैट्स द पोजीशन दैट वी कॉल इट एज पीएमएफ। तो अब इतना सब कुछ करने के बाद, इतने स्टार्टअप्स में काम करने के बाद, खुद का स्टार्टअप बनाने के बाद, मुझे अब समझ में आता है कि मैं अपना पीएमएफ ऑलरेडी अचीव कर चुका था व्हेन आई वाज डूइंग फूड एट एफबी एट मैनिट। मेरे पास कस्टमर्स वहीं पे थे। आई नो कि यार एनआरआईज़ हॉस्टल से बहुत ऑर्डर आ रहे थे, गर्ल्स हॉस्टल से बहुत ऑर्डर आ रहे थे। केक्स क्रेज़ी काम कर रहे थे। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर दिन एक ना एक दिन इंसान का तो बर्थडे होता ही है, राइट? तो केक्स का बिज़नेस बहुत अच्छा था। मुझे पता था किस तरह से मार्केटिंग करना है, क्योंकि हम लोग ही सीनियर थे। तो हम लोग को पता है कि वहाँ सबके हॉस्टल में जाके नीचे अनाउंस करना है, दैट्स द मार्केटिंग दैट वी कैन डू। सारी चीज़ें सॉर्टेड थी। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस को और अच्छे से लेते तो शायद और बड़ा कुछ बनता। बट अगेन, नो वरीज़, डूइंग अनदर बिज़नेस नाउ, नॉट अ लॉट ऑफ रिग्रेट राइट नाउ। amazing, boss. Like आपने जो स्पॉट भी मेंशन किए एंड इतने इनिशियली आपने स्टार्ट किया और अपनी पर्सनल स्टोरी बताई, दैट वेरी इंस्पायरिंग। ऑल्सो बॉस, वैसे अब तो चीज़ें काफ़ी बेटर हो गई। लाइक हमारे हॉस्टल में तो अब डायरेक्ट डिलीवरी बॉय आते हैं। अप टू 12 ओ क्लॉक इट इज़ अलाउड फॉर अस टू टेक द डिलीवरी। नाइस, नाइस, नाइस। पहले उस टाइम पे तो आई थिंक गर्ल्स का टाइमिंग भी था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि आफ्टर आई थिंक 12, क्योंकि अगेन प्रॉब्लम्स थी उस समय। अब वेरी हैप्पी टू सी कि यार सिचुएशंस काफ़ी अच्छी हुई है।
एंड सब कुछ बढ़िया हुआ है. So there's no need of food interview right now in merit. It's good. Problem is solved. यस बॉस। तो बॉस, कोई टीचर थे जिन्होंने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपको खुद पढ़ाने में इंटरेस्ट डेवलप हुआ? पढ़ाने में तो यार मुझे खुद ही इंटरेस्ट था. व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, तब जो हमारे जो मैरिट का जो गेट है, गेट में जब एंटर करते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक पतली गली जाती है, वहाँ पे स्लम एरिया है. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर किया है वहाँ पर. एटलीस्ट हमारे उस टाइम पे हम लोग कुछ कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाने जाते थे उस स्लम एरिया में. तो तब से ही मैं इन्वॉल्व हूँ. अभी आई डोंट नो, आई होप वो स्लम एरिया भी ना हो, सब लोग डेवलप कर रहे हो, बट उस समय तो था. मैरिट का जो गेट है उसके पास लेफ्ट में एक पतली सी गली थी वहाँ पे. तो तब से ही पढ़ाने का था. तो अगेन दिस इज समथिंग इन माय डीएनए. आई जस्ट बिफोर दिस पॉडकास्ट अभी मैंने रिसेंटली अपना वीडियो रिकॉर्ड किया है ऑन यूट्यूब, टीचिंग सम अदर टॉपिक. तो पढ़ाने के लिए तो यार हमेशा से ही था. देन कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़ी नहीं. मेरे मम्मी पापा ही मोटिवेशन थे मेरे लिए. दैट्स अमेजिंग बॉस, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। So boss, how did you YouTube become your platform and how do you feel about learning online? लर्निंग ऑनलाइन, सॉरी. Like how did YouTube become your platform and how do you feel about learning online these days? लर्निंग ऑनलाइन दीज डेज. Yes, boss. So learning online, तो यार अब राइट नाउ एवरीवन इज लर्निंग ऑनलाइन ओनली. राइट, ऑफलाइन में भी अगर हम कुछ पढ़ाते थे, इवेंचुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो ऑनलाइन ही हो रहा है हमको. सो लर्निंग ऑनलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर content creators to just put videos or some educational content or anything. um, so although सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग पर रिलाय नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है. कुछ कुछ चीज़ें ऑफलाइन जो कनेक्शन जो होता है टीचर के साथ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बट आई थिंक 80% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ऑनलाइन लर्निंग. जितना मैंने भी देखा है, मैंने कुछ कुछ लेक्चर्स भी किए हैं कुछ कॉलेजेस में यूरोप में, व्हाइल सिटिंग इन इंडिया. ऑल्दो एक पर्सनल कनेक्शन नहीं हुआ स्टूडेंट्स के साथ, बट आई थिंक 80% तो हम लोग मतलब मैसेज कन्वे हो जाता है. अगेन पेरेटो रूल को अगर फॉलो करें, 80-20% वाला, 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, 20% इवेंचुअली होती रहेगी. सो दैट्स माय ओपिनियन. Yes, boss. तो बॉस, जैसा कि आपने मेंशन किया कि आपको पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट था एंड आप जब मीडिया जाया करते थे, तो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट हमारी कॉलेज में ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो एनजीओ के थ्रू बच्चों को जाके टीचिंग ऑफलाइन टीचिंग प्रोवाइड करती हैं। नाइस नाइस. और एक टाइम पे भी एक था, उसका नाम था डिस्कवर योरसेल्फ शायद. अभी भी है क्या? सर ये नेम से तो नहीं है, कुछ और? मे बी चेंज हो गया होगा। यस बॉस। So, boss, over the last 5 to 7 years, India's fintech landscape has seen a dramatic shift. So, what do you think will drive the next big wave in India's fintech sector? इन लास्ट 5 to 7 years, इनफैक्ट यहाँ पर दो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, और ये दो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. इन लास्ट 5 years वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट कोविड एरा. इन लास्ट 7 years हम लोग कुछ प्री कोविड की भी बात कर रहे हैं. अगर हम लास्ट 5 to 7 years की जगह हम ऐसे बोले कि पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड में क्या डिफरेंस है, मैसिव डिफरेंसेस आए हैं. फिनटेक इंडस्ट्री में वी ऑल नो दैट पेमेंट सेक्टर इज प्रीटी मच सॉर्टेड इन इंडिया. UPI, thanks to UPI and the government's initiative on peer-to-peer payment, I think that problem is sorted completely. In fact, इतना बढ़िया हम लोगों ने बनाया कि बाहर बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी हमसे इंस्पायर हो रहे हैं टू डू समथिंग लाइक दिस. देन कम्स फिनटेक में और आता है लेंडिंग सेक्टर. लेंडिंग सेक्टर अप एंड डाउन चलता रहता है. P2P लेंडिंग का एक एक फेज आया था, फिर वो डाउन हुआ. फिर NBFCs की थ्रू लेंडिंग का एक फेज आया था, वो भी रिसेंटली थोड़ा डाउन हुआ है, अगेन पिकिंग अप. तो ये थोड़ा-सा एक एक साइन वेव साइन साइक्लिकल वेव उसका चलता रहता है लेंडिंग का. इफ यू टॉक अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ मुझे लगता है दैट इज समथिंग व्हिच वी विल रीडिफाइन द एंटायर फिनटेक सेक्टर इन इंडिया. एंड वेल्थ मैनेजमेंट नॉट जस्ट जिस तरह से हो रहा था उसी को इवॉल्व कर रहे हैं. इंटीग्रेटिंग एआई in different sorts of wealth management aspects. So it can be HNI, ultra HNI, wealth management. It can be normal AMC का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग. इट कैन बी ट्रेडिंग जो हम लोग कर रहे हैं, और अदर थिंग्स एज वेल. जो भी सेगमेंट है जहाँ पर हम फंड मैनेजमेंट की बात करें, वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें,
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं जो आ भी रहे हैं। अगर हम देखेंगे ज़ीरोधा ने रिसेंटली एमसीपी लॉन्च किया था, राइट, विद क्लॉड, जहाँ पर इट्स बेसिकली ज़ीरोधा इज़ अ इंडस्ट्री लीडर इन द ब्रोकरेज स्पेस। सो ज़ीरोधा ज़ीरोधा अगर कोई चीज़ कर रहा है, सो वी कैन से दैट यहाँ इंडस्ट्रीज़ डायरेक्शन में हम जाने लगे। सो ब्रोकर्स विल स्टार्ट बिकमिंग और इन्वॉल्विंग एआई इन द ब्रोकरेज स्पेस। तो ये हो गया ट्रेडिंग वाला, हम लोग भी जैसे कर रहे हैं। देन कम्स द वेल्थ मैनेजमेंट। जब मैं काम करता था डिज़र्व, डिज़र्व इज़ अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, काफ़ी ज़्यादा एआई इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अगेन दीज़ टाइप्स ऑफ कंपनीज़ आर कमिंग अप। रिसेंटली उनका एक राउंड क्लोज़ हुआ था, 265 करोड़ का फ्रॉम पेनजी इन्वेस्ट, रेज़्ड इट एट अ वैल्यूएशन ऑफ आई थिंक 200 मिलियन। तो काफ़ी अच्छा वैलिडेशन मिल रहा है मार्केट से। दे हैव अराउंड 15,000 करोड़ ऑफ AUM यूजिंग दिस थिंग। तो नई टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्विकली डिसरप्ट कर रही है मार्केट को। इफ यू टॉक अबाउट एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा अभी, क्योंकि हाईली हेवीली रेगुलेटेड है। बट हाँ, कुछ कुछ कंपनीज आने लगे, जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड एक आया है, जहाँ पर उन्होंने काफी टेक्नोलॉजी को यूज किया है, ऐसा एटलीस्ट वो लोग बोलते हैं। आई थिंक इवेंचुअली और ऐसे आएंगे। सो इन द एंटायर फिनटेक सेगमेंट आई थिंक पेमेंट इज सॉर्टेड। लेंडिंग के साइन का मतलब ये सिक्लिकल चलता रहेगा बेस्ड ऑन द रेपो रेट एंड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई एंड इवन फेड एज वेल। I see a lot of opportunities in the wealth management sector and trading sector, which is basically integrating AI in different sorts of thing in this segment. मुझे ऐसा लगता है। अग्रीड बॉस। इंडिया का फिनटेक इकोसिस्टम अभी काफ़ी फास्ट इवॉल्विंग है एंड दीज आइडिया पॉइंट्स आर वेरी रेलेवेंट। बॉस, हमने आपकी इंसाइटफुल ब्लॉग्स पढ़े थे एंड वी आर वेरी क्यूरियस व्हाट इंस्पायर यू टू राइट देम। इज इट प्योरली अ हॉबी और देयर इज अ पर्सनल स्टोरी बिहाइंड इट? ब्लॉग्स का यार, I'll be very honest, I don't like writing. I like recording my videos and educating, or directly going to the students and then teaching in person. Blogs is something that I started doing when I started Tradomate. I'll give a very honest answer. We wanted to do SEO optimization. एसईओ में हमको ब्लॉग्स लिखने ज़रूरी है टू टारगेट द कीवर्ड्स। देन अगर मन करे ना करे, वी हैव टू राइट ब्लॉग्स। दैट्स हाउ दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स रिसेंटली फॉर ट्रेडोमेट। So boss, that's really amazing answer. Boss, if you had a chance to meet your younger self, what do you think he would say? टेक रिस्क एंड डोंट थिंक ऑफ आउटकम a lot. That's it. Because I know that my younger self would not be taking, not be doing any unnecessary things. ऐसा नहीं कि यार कुछ भी रैंडम रिस्क ले लिया, फिफ्थ फ्लोर से कूद गए, ऐसा तो नहीं करेगा मेरा यंगर सेल्फ भी। वो जो रिस्क लेगा वो भी काफ़ी कैलकुलेटेड होगी। बट कई बार वो फ़ियर जो होता है, फ़ियर के कारण हम लोग रिस्क नहीं ले पाते। जब रिस्क नहीं लेते हैं, तो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दिखती है। फिर हम लोग वही करने लगते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो दैट्स इट यार। टेक रिस्क एंड डोंट थिंक अबाउट द आउटकम। Yes, boss, it really shows. Sorry. आई एम जस्ट सेइंग फील फ्री टू फेल एंड फेल एज़ सून एज़ पॉसिबल, दैट्स इट। Yes, boss. सर, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि पर्सपेक्टिव आपका टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है एंड आपको शुरू से ही कॉन्फिडेंस था खुद पर कि आपका यंगर सेल्फ बेटर है डिसीजन करेंगे। नहीं था मुझे, मैं ये चीज़ चेंज बोलूँगा, मुझे शुरू से कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे एक्चुअली कॉन्फिडेंस आया व्हेन आफ्टर आई स्टार्टेड फूड एटरपी एट मैनेट। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो अगेन मुझे बस ये था कि यार मैं सॉर्टेड था कि यार मोस्टली आई विल डू सम जॉब, और मेरा फोकस तो गवर्नमेंट जॉब्स पे था। मुझे कि नहीं थी। आई फेल्ड अ लॉट। आई वाज़ द ओनली पर्सन बाय द वे इन एमएनआईटी, इन माय बैच, जिसका मेरा एक्चुअली पॉइंटर है 7.98, जो कि राउंड ऑफ करते हैं तो 8 पॉइंटर हो जाता है। सो मैं अकेला था जो कि 8 पॉइंटर एंड अबव में अनप्लेस्ड था। मैरिड में 2015 बैच, मतलब जब 2015 में ये हुआ था। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि मैं कैंपस में नहीं बैठा था। क्यों? क्योंकि मुझे बेसिकली अगेन आई वाज़ जस्ट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें कर ली जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते। जैसे कैंपस प्लेसमेंट्स में ना बैठना। लोग ऐसा सॉर्ट करते हैं कि यार एक बार जॉब ले लेते हैं फिर फिगर आउट करते हैं। मैं लिटरली कुछ नहीं किया मैंने, और मैं जॉब नहीं लगा एंड देन आई मूव टू मुंबई। आई वाज़ जस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा
फाइनेंस कंपनीज में जाकर, मतलब बीट बैंक्स और बुटीक फर्म्स और ट्रेडिंग कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, सभी जाके जाके मैं जस्ट बात कर रहा था, एंड एवरीवन जस्ट सेइंग कि यार आप तो इंजीनियर हो, आपकी कुछ फाइनेंस की कुछ डिग्री नहीं है, तब तक तो सीएफए लेवल 1 ही हुआ था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो विथ टाइम मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत सारी और चीज़ करनी थी। दिस वाज़ वन ऑफ द रिस्क दैट आई टूक अननेसेसरीली, बट ठीक है, इट्स फाइन, आई फेल्ड एट दैट टाइम। मैंने फिर और चीज़ें की, आई टूक अ ब्रेक फॉर सम टाइम। इट फील्स वेरी डिसहार्टनिंग व्हेन वी आर एट होम डूइंग नथिंग, बट जितने भी बाकी के दोस्त हैं, वो जॉब शुरू कर चुके, कोई मनाली घूमने गए, कोई कहाँ गया, आई एम जस्ट स्टिल फिगरिंग इट आउट। तो स्टार्टिंग के कुछ फेजेस थोड़े डिफिकल्ट रहे थे, सो कॉन्फिडेंस डे 1 से नहीं था, इवेंचुअली बिल्ड हुआ है। इतनी बार गिर के, इतना बार सब कुछ देख कर समझ में आया कि नहीं यार, ये सब बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। बड़ा फ़ोकस कुछ और होना चाहिए। सो ये विद टाइम बना, और ये विद टाइम ही बनता है। आई डोंट थिंक ये किसी के साथ ये इनबिल्ट होता है, ये डीएनए में नहीं होता है, इवेंचुअली बनता है। आप लोग भी जब एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ़ को, तो इवेंचुअली ये चीज़ें बिल्ड होगी। और कभी भी हिचकना नहीं यार ये सब चीज़ों में। बहुत बार फेलियर्स आते हैं, कभी ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि इवेंचुअली चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है। कुछ दिन हो सकता है कि हम लोग किसी और के घर में काउच पे सो रहे हो, इट्स एब्सोल्यूटली फाइन। बस यही चीज़ है, तो किसी के डीएनए में नहीं होता। अगर अगर आप हम में से जो भी सुन रहे हैं, उनका अगर लगता है कि यार आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यू कैन बी अंडर कॉन्फिडेंट राइट नाउ। As was whatever you have already mentioned, that lesson you can carry into any field, not just entrepreneurship. And it really shows that the first step, although it may be the hardest one, but is the most important one. एग्ज़ैक्टली। So, boss, if you are given choice to visit Bhopal again, आप अपना दिन कैसे spend करेंगे? भोपाल में आई विल गो टू माता मंदिर, ऑफ कोर्स। आई विल हैव सम टी देयर। वहीं पर एक भजिए का ठेला लगता था, बड़ा अच्छा, मूँग के भजिए। आई डोंट नो अभी भी होंगे, बट वहाँ पर एक अंकल काफ़ी एज के मूँग के भजिए बेचते थे। तो वो, इफ ही स्टिल देयर, वो खाएँगे। देन वहाँ से अपना ये जो टीटी नगर, राइट? वहाँ पर थोड़ा-सा वॉक करेंगे। देन वहीं से हम लोग बाइक लेके सीधे निकल जाएँगे एमपी नगर। आई थिंक आप लोग मैप को विजुअलाइज़ कर रहे होंगे शायद मुझ मेरे साथ। Absolutely, boss. जितना मुझे ध्यान है, वहीं से बाइक लेके स्ट्रेट जाएँगे अब एमपी नगर, डीबी स्ट्रीट मॉल में थोड़ा घूमेंगे। फिर अम, फिर रिटर्न आएँगे कॉलेज में ही, थोड़ा कॉलेज में ही फन करेंगे। फिर रात में देयर वाज़ अ कैफ़े, क्या नाम था उसका? सागर सागर कैफ़े। सागर गहरे. सागर क्या, गहरे, हाँ, सागर Yes, boss. सैंडविच खाएँगे। फिर हम जाएँगे नादरा, रेल अपना बस स्टैंड, चाय पीने के लिए। आई थिंक सानिध्य वुड कनेक्ट विथ मी। मोस्टली सानिध्य भी जाता होगा नादरा में चाय पीने के रात में, क्योंकि वहीं पे मिलती है आलू पराठा और चाय। ये मेरा रूटीन रहेगा, उसके अलावा सिर्फ़ फन करेंगे, कुछ और काम की बात नहीं करेंगे। Definitely, boss. Sounds like perfect chota gateway from routine life. एग्ज़ैक्टली। Yes. देयर इज़ अ वेरी, मतलब that one word that I won't say in this podcast. Fun in Hindi, we call it something. Doing that fun in the college. So yeah, Yes, boss. So, boss, through the highs and the lows of your journey, what kept you going when the things got tough? when things got tough, actually 2 बार हुआ है ऐसा, 3 बार हुआ है इनफैक्ट, जब चीज़ें थोड़ी टफ हुई है। द फर्स्ट वन फर्स्ट एक्सपीरियंस आई ऑलरेडी शेयर्ड। जब कॉलेज के जस्ट बाद आई वाज़ आई I visited 30, 40 offices in Mumbai for some sort of job in finance. वो एक था। Second was um, so just before the masters in advanced finance, मैं जब जीमैट की तैयारी कर रहा था, अगेन आई एम नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, जीमैट क्रैक करने में मुझे बहुत मेहनत लगी। दैट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग अगेन। जस्ट इमेजिन you're 20, 24 to 25 years old, again doing nothing at home, no savings. um, at that time only I was doing a lot of trading. तो वो एक एक्सपीरियंस था। थर्ड एक्सपीरियंस था जब मैं स्पेन में था कोविड के टाइम पे। स्पेन वाज वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज इन द बिगिनिंग। चाइना, इटली एंड स्पेन, फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर मैं अकेला था, वहाँ पे कोई नहीं था। दीज वर द थ्री टाइम्स जब बहुत ज़्यादा लगा। व्हाट
मोटिवेटेड मी टू कंटिन्यू एंड नथिंग है मेरे ख्याल से। वो टाइम निकाल लो बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मतलब ज़्यादा नहीं सोचता वहाँ पे, क्योंकि जब जो बुरा टाइम है वो बुरा चलता रहेगा। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा और बुरा भी चल गया तो अगेन जस्ट वो टाइम को पास कर दो। बाकी तो कुछ और मोटिवेशन नहीं था। बुरा तो सबको लगता है, ऐसा नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है, कभी टाइम खराब आ जाएगा, बट ठीक है यार। तो आई आई वो बस ये कि बुरा जो फ़ील हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, दैट इज़ द ओनली थिंग। हाँ, दैट्स अ गुड वे टू रेट। एक्सेप्टिंग द बैड थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ इज़ द मोटिवेशन दैट कीप्स अस गोइंग। आई थिंक सभी की लाइफ में सेम चीज़ होती है। वो एक्सेप्ट करेंगे कि यार दिस टाइम शैल पास, दैट्स इट यार। बाकी तो सब सॉर्टेड है। दैट्स सो ट्रू बॉस। वो कहते हैं ना कि अच्छा वक़्त आने के लिए बुरे वक़्त से गुज़रना पड़ता है। So it really shows how much you will keep going through the things and stay motivated with all you do. एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाएगा। Yes, boss. Keep. ऑल द इमोशंस जो भी हम फ़ील करते हैं, ये सारे रिलेटिव होते हैं। भगवान ने हमारा डीएनए इस तरह से बनाया है। अ, खुशी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही अमीर इंसान को मान लो ₹100 पड़े हुए मिलते हैं, वर्सेस एक गरीब इंसान को ₹100 पड़े हुए मिलते हैं। सो द लेवल ऑफ हैप्पीनेस वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। क्यों? Exactly. गरीब इंसान ने गरीबी देखी है, अमीर इंसान ने वो गरीबी देखी नहीं, उसके लिए ₹100 की इतनी वैल्यू नहीं है। हेंस जितने भी इमोशंस हमारे होते हैं, इट कैन बी हैप्पी हैप्पीनेस, इट कैन बी सैडनेस, इट कैन बी एक्साइटमेंट, प्राइड, कंपैशन, रिग्रेट, फोमो, एनीथिंग, ये सारे रिलेटिव होते हैं। तो जब अगर खराब टाइम आता है ना, तो उसके बाद जो खुशी आती है, उसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा होता है। इट गोज़ विद अदर थिंग्स एज़ वेल। मान लो अम, द द द फीलिंग ऑफ प्राइड जब हम इंडिया में रहते हैं, जैसे आज 15th अगस्त है, राइट? एटलीस्ट हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई डोंट नो ये कब हम पब्लिश करेंगे, बट 15th ऑफ अगस्त को, सॉरी 16th ऑफ अगस्त है आज, सॉरी, कल 15 हाँ? तो इंडिया में रह के हम लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आती। मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल हूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो गया एकदम डेट में। बट जब मैं वहाँ था स्पेन में, मैं हर 15th अगस्त को, 26 जनवरी को मैं एम्बेसी जाता था। एंड द फीलिंग ऑफ प्राइड वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट देन राइट नाउ। तो सारे इमोशंस का ऐसा होता है। तो अगर कोई इमोशन नेगेटिव कुछ टाइम के लिए है ना, वी शुड बी हैप्पी और वी शुड बी सैटिस्फाइड एट लीस्ट, कि जो नेक्स्ट इमोशन जो पॉजिटिव वाला आएगा, उसका फ्लेवर ज़्यादा होगा। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया बट ठीक है। Absolutely, boss. So, boss, ये एक्सपीरियंस शेयर करना बिगिनर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। एग्ज़ैक्टली। Yes, boss. So, boss, let's get to the fun segment of the podcast. We have a gibberish game, decoding game for you. In the game, you will see a phrase on screen that looks and sounds silly, but when you say it out loud, it will sound like a real word and phrase mostly related to finance. So you have to figure out the hidden words. ठीक है, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। Yes, boss. So the very first word, I would like to phrase the first word so that you may understood the game well. Like the word is here, strong market. It will come out as a phrase or a word related to finance, which is very much similar to stock market. So you have to guess the word. It's pretty simple. ठीक है, Okay. स्टॉक मार्केट। So moving to the next one. ए ए बी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक, Exactly, boss. एपीओ, नाइस। Now moving to the next word. ग्राइब, ग्राइब करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। ओह माय गॉड! क्या सोचते हो यार? Wow, boss. You can decrypt finance even in gibberish. क्रिप्टो करेंसी, भाई क्या सोचा है यार? ये किसने लिखा है? आपकी एडिटिंग मतलब स्क्रिप्टिंग टीम ने बनाया क्या? बड़ा अच्छा, Yes, इंटरेस्टिंग। boss. Scripting team. Moving further. सिक्योर, सिक्योरिटीज, Congratulations, boss. You are on a streak. सिक्योरिटीज, नाइस। ये चीज मैं यूज करूंगा, सिक्योर इट इज कहीं पे और। Yes, boss. Moving further. रिस्क ऑन एपेटाइट, रिस्क ऑन एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट, रिस्क ऑन
Correct answer, boss. Yes, boss. कॉल क्या है इसमें? Boss is just a word to connect the final word. ओके, रिस्क कॉल। मुझे लगा था कॉल भी कुछ यहीं पे रिस्क एपेटाइट। Up to now, you haven't missed a single phrase. That's really amazing, boss. नाइस। Moving further to the next phrase. लिक्विडिटी। Amazing, boss. हमने काफी इजी गेम बना दिया है क्या आपके लिए? नहीं यार, मुझे तो बड़ा मैं नोट करते जा रहा हूँ बाय द वे, सारी चीज़ मैं पेन लेके बैठा। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे सारी चीज़ें। Thank you so much, boss. Next phrase is on the screen. एशियन। Asset allocation. That's really amazing, boss. You keep on giving every phrase in a single guess. So, boss, क्या लगता है नेक्स्ट वाला फ्रेज इजी होगा या टफ होगा? ज़रा यार आप लोग आपका डिफिकल्ट होते जा रहा है। आई थिंक नेक्स्ट वन वुड बी वेरी डिफिकल्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम। Yes, boss. Financial freedom it is. फाइनेंशियल फ्रीडम। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Absolutely correct, boss. एसेट मैनेजमेंट। Yes, boss. It is correct also. बढ़िया। दैट्स इट। Yes, boss. Thank you so much. बहुत ही इनोवेटिव आप लोग यार। दैट्स सो गुड। Yes, boss. कुडोस टू द टीम। Thank you so much, boss. We are sure you must have enjoyed cracking the phrase. 100%. And it's really amazing that you haven't missed a single word. And in fact, I have noted down a lot of things here. और किसी के ऊपर ये यूज करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। Yes, boss. So, boss, thank you so much for sharing your journey and taking time out of your day. बॉस आपसे बात करके ऐसे लगा जैसे लाइफ का क्रैश कोर्स मिल गया हो एंड वी आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन. Thank you so much for inviting me for this podcast. Uh, if you guys are into trading, into finance, into learning finance, make sure to check out tradomate.one. We have built a lot of tools. It's as simple as using ChatGPT. Just write in normal plain English sentence and do a lot of analysis. I think for you guys, at least मंशा आपने जैसे बताया था कि आप लर्न कर रही हो, आपके लिए शायद काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लाइक जो फाइनेंस क्लब्स जो हैं वहाँ पर प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज टू दोज पीपल एज वेल। श्योर बॉस. स्टॉक वैल्यूएशन तो ऊपर नीचे होते रहेंगे और हर डिसीजन का आरओआई नहीं निकलेगा, पर अपने जुनून को फॉलो करना ये हमेशा एक वर्डी ट्रेड रहा है. तो लेट्स कंक्लूड टुडेज मास्टर क्लास. मैं हूँ मंतशा कुरैशी फ्रॉम टीम ईसेल, लॉगिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एपिसोड. तब तक के लिए कीप ग्रोइंग योर एसेट्स, इन्वेस्टिंग योर एनर्जी, seizing opportunities, and above all, make things happen.